Arya, can you please switch on your mic? Switch off your mic. Arya Gadkar. Thank you. So you can start, sir. Akash, sir. Yes, sir. Can you hear me? Hello. Guys, am I audible to you all? Yes, sir, you're audible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You all can see my screen, my laptop screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So very good morning to you all, guys. Yesterday Good we morning, have, sir. yes, guys, good morning. Yesterday we have gone through the basic introduction of cybersecurity. Now we'll go furthermore one step ahead into field of cybersecurity. Okay. In the beginning, first of all, I'll tell you get your systems ready, get your hacking environment ready. Like, if anyone have laptop, just download virtual machine into your system. Okay, and install Kali Linux into that, so you can create hacking environment into your system and you can practice whatever we taught over here. Okay, does anybody using Kali Linux or any other distribution of Linux? Okay, guys. So today we are starting email. Okay, how we can secure our email, and what is the difference between email and Gmail, and what is the different forgery of email. Okay, they should automatically come. So can anyone unmute yourself and just give me difference between what is email and Gmail? Do you think whether both are same or both are different? Can anyone? Both are almost same. But like Gmail is from Google, so that's why it's called Gmail. Okay, and email. First of all, the full form email is electronic mail and the Gmail is Google Mail. Exactly. And if we talk about email, there is a lot of service provider for email, like into your area. Sorry, guys. Like into your area, there are more than two or three internet service provider. So like that, there is also email service provider. So among them, Google is one of them service provider of email. There is a lot of service provider of email. Just I'll tell you.
See, there is 13 best, which are Gmail service provider. Like we use Gmail often because this is best. Like everybody knows, Google has all our data, like Google Drive, in Google Photos, Google Slides, everywhere we save our stuff on Google. So that's why we use Google most as a email service provider. Over there, we can storage 15 GB of data. Okay. And there is Titan and HubSpot, Aweber, Outlook. I think all of you have must about Outlook because it is most used in office premises. If anyone would be work as in any kind of office, so he might have used Outlook. Okay, there is Yahoo, and the extension would be @yahoo.com or the outlook.com. It depends. Zoho Mail is also there. Okay, but as we know, Gmail is free, and there is Titan, which is not free. Okay, but the storage of the Titan is 50 GB. But as we know, this is not free. They are charging something, so they'll be giving more storage. Okay, so what we can say, the Gmail is one of the service provider of email. Okay, email we can have a lot of service provider. Gmail is one of them. Okay, first of all, introduction. We'll start. First of all, full form is email service provider. Okay, so often हम लोग रोज कोई ना कोई email Gmail type करते. It is one kind of email only. Okay, you can say Gmail is a email, but you cannot say email is a Gmail. Okay, because Gmail is service provider of Google or email. Okay, first of all, we'll come to know how email works. Okay, does anybody know about what is port and what is protocol? Anyone? किसी को SMTP, IMAP, POP3 ये सब नाम सुना है किसी ने? Yes. ओके, सो जस्ट आप मुझे एक लाइन में बता सकते हो क्या होता है ये पोर्ट, क्या होता है प्रोटोकॉल, और IMAP, POP3 ये सब क्या होता है, SMTP? कुछ भी चलेगा. इफ इट इज गोज रॉन्ग, फाइन, नो प्रॉब्लम, वी आर हियर टू लर्न. अच्छा, just tell me full form of SMTP. Simple Mail Transfer Protocol, and POP3 Post Office Protocol, and IMAP Internet Messaging Accessing Protocol. Okay. So these are the protocol which helps to send and receive emails or mails. Okay. So like here you can see there is a man who was sending the mail to some other guy. So वो जो मेल भेजेगा सबसे पहले उसके नियर बाय whoever will be the service provider, ISP, internet service provider, उसके सर्वर के पास जाएगा. Then it will go to Gmail database, and as we know in Gmail database सबके Gmail वहां पे सेव होते हैं. Okay, so ईमेल को डेटाबेस तक ले जाने के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Okay, so protocols are set of rules which helps emails to deliver to the database. Okay, we can say like this. And there are more coming. ओके, अभी डेटाबेस के अंदर सेंडर का भी ईमेल है, जीमेल है, और रिसीवर का भी जीमेल है. सो डेटाबेस में से जैसे मैंने किसी XYZ पर्सन को भेजा, जैसे इसको भेजा, सो इसका जीमेल एड्रेस वहां से होगा वेरीफाइड, बट वहां पे प्रोटोकॉल जो होगा रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से पॉप यूज होगा और IMAP यूज होगा. ओके गाइस, पॉप और POP3 सुना है किसी ने? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. ओके ओके, बट गाइस सब लोग ने ये तो देखा होगा कि यू इनटू योर जीमेल आपके एकदम पुराने पुराने जीमेल भी पड़े होंगे जो आपने स्कूल के टाइम पे किसी को भेजे होंगे, या फिर आपने
5 साल पहले या फिर 2-3 साल पहले अपने फ्रेंड को भेजे होंगे, वो सारे जीमेल भी पड़े होंगे। ओके, जो आपके फोन में नहीं होते, वो जीमेल के डेटाबेस में होते हैं। तो वहां से एवरी टाइम जब आप उसको देखते हो तो वहां से रिट्रीव होता है। तो फॉर दैट प्रोटोकॉल विच इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर, इट इज POP3, पोस्ट ऑफिस protocol. POP3 they are using. Okay, and there was a issue with the POP3 with the POP protocol, like जब भी रिसीवर डेटाबेस से मेल को अगर से रीड करता है तो डेटाबेस में उसकी कॉपी नहीं होती थी इनटू POP protocol, post office protocol. But in the POP3 they keep one copy in the database, so even you delete in from through your machine, you can retrieve from there. Okay. और हम लोग अपने मोबाइल फोन में भी जीमेल लॉगिन करके रखते हैं इन केस वी आर सम अदर प्लेस, वहां पे भी वी ट्राई टू लॉग इन आवर जीमेल टू सी एनी काइंड ऑफ ईमेल्स इफ इट केम। ओके, सो बट पहले के सिनेरियो में क्या होता था कि आप मल्टीपल प्लेस पे लॉग इन नहीं कर सकते थे ईमेल या फिर जीमेल का यूज करके, क्योंकि जो ईमेल्स यूज होते थे वो थोड़े आउटडेटेड, जो प्रोटोकॉल्स यूज होते थे आउटडेटेड थे, तो उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इंप्रूव करके आप मल्टीपल जगह पे भी उसको लॉगिन करके ईमेल के तुम्हारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ ईमेल वर्क्स। एंड व्हाट इज स्नेल्स मेल्स एंड द ईमेल? सो स्नेल्स मेल्स हमारा नॉर्मल जो हम लोग पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस से भेजते मेल या फिर कुरियर करते, सो इट इज लाइक दैट। सो एड्रेस जो होगा वहाँ पे फिजिकल एड्रेस होगा इनटू द स्नेल्स मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल में इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होगा, लाइक यहाँ पे फ्रेड flintonstone@gmail.com भी हो सकता था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होगा। ओके, डिलीवरी के लिए क्या होगा, वहां पे इनवेलप होगा, बट यहाँ पे डिजिटल मैसेज होगा which will be transferred in the form of packet and bits. Okay, snail's mails it can take 3 to 10 days, depends upon the distance कि कितना टाइम वो पहुंचने को लगेगा। एंड ईमेल इंस्टेंटली पहुंच जाता है। मैंने आपको अगर से मेल भेजा तो आपको क्या 10 से 15 दिन लगेगा? नहीं, उसको इंस्टेंटली आपको पहुंच जाएगा, डिपेंड अपॉन इफ योर इंटरनेट इज वर्किंग ऑन इट। बट अगर से मैंने आपको यहाँ मेरे एरिया से कुरियर किया तो वो इंस्टेंटली पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, इट विल टेक टाइम फ्रॉम 10 to 15 days। एंड द कंटेंट व्हाट स्नेल्स मेल्स में क्या क्या कंटेंट लग सकते हैं? जस्ट कुछ तो पार्सल हो सकता है, कुछ फोटोज वगैरह, या फिर कुछ रिटर्न नोट्स हो सकता है। But into emails, it can include the digital attachment along with the document and the images and videos as well. ओके, सो इमेजेस वीडियो ये सब भी हम लोग ईमेल में अटैच करके सेंड कर सकते हैं, इट विल नॉट टेक इवन मोर देन 1 or 2 seconds, इट विल रीच। ओके, as we know there is a charges for courier. If you are going to courier something to your relative, they will take charges depend upon distance, but emails it is free, there is no charges, only require internet connection, that's it. Okay, so obtaining an email address. So email address, internet service product typically provide you with at least one email address. So as we know, everybody have a email address or a Gmail address. Can anybody tell me how many Gmail address they have? कितने हैं आपके पास? 5 है, 10 है, 15 है? जीमेल एड्रेस कितने हैं बता तो सकते हो कोई? कितने? 2 है? एग्जैक्टली exactly. कितने? जी 3 है। सो एक 12 है। 10 है, करेक्ट, ऑसम। सी गाइस, बट 10 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस 10 का 10 जीमेल का पासवर्ड आपका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। कल जैसे मैंने पासवर्ड पॉलिसी में बताया था, पासवर्ड आपको इनक्रिप्ट करके वहां पे रखना होगा। यू हैव टू यूज द इनक्रिप्शन टू have a better password which cannot be unbreakable, like in through brute forcing or any kind of attack into cybersecurity. Okay, and try to keep your primary email address or Gmail address and the secondary Gmail address.
or the Gmail address which you are using to just log in into any kind of login pages, or if you are visiting somewhere, if they are asking for a Gmail, so you can write that Gmail over there. And the primary Gmail address you don't have to share everywhere. It would be good for your privacy. Okay. So if you have two Gmail, so classify them as a primary Gmail address and a secondary. So primary क्या करना है आपको, just आपको आपके पर्सनल यूज के लिए एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेल वगैरह करने के लिए आप रख सकते हो, एंड द सेकेंडरी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए, या फिर आप कहीं पे गए हो वहां पे नोट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए, या फिर किसी को देने के लिए आप यूज कर सकते हो. ओके. And which you have confidential data you can keep on the Google Drive of that primary Gmail, not the secondary Gmail. Okay, so if your Gmail address comes in a database, so your primary Gmail would be safe. That's a basic tip which you can take. Okay. And everybody using Gmail address. I think सबके पास Gmail का एड्रेस ही होगा, किसी के पास Yahoo या Hotmail का है या फिर Outlook का है. Yes, sir. Yes, sir. I have Outlook का है. ओके, ग्रेट. किसका भी हो, वर्किंग होना चाहिए, कोई टेंशन. आपको किसी को मेल भेजने के लिए व्हाट यू रिक्वायर, जस्ट यू हैव टू रिक्वायर sender's receiver's email address, and that's it. You can send the email address through your mail. Okay, like it could be Outlook, Outlook Express, या फिर इनक्रिप्टेड मेल का भी हो सकता है. एंड द ब्राउजर विच यू आर यूजिंग टू सेंड मेल, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड द फायरफॉक्स. You can use all three browser to send emails. Okay guys, हम लोग 9 बजे तक theory करेंगे till 9 o'clock. Then we'll have a practical, like how we can different kinds of attacks which could be performed in a on email address. Okay. And what you require to composing an email. So first of all, the recipient address, distribution list, groups, CCC. So CCC full form is carbon copy. BCC full form is blind carbon copy. Here all the stuffs come. And the subject for what you are writing mail, and the message what you want to write into that, and there's some kind of attachment. If it could be a photo, video, any kind of PDF or text file, it could be anything. Okay, which is optional also, but the subject and the message, it's very important to write. And what you require to incoming mail, when you write, when your sender is sending you to mail, so read status you will see. Okay, and वहां पे आपको रिप्लाई ऑल का ऑप्शन दिखता है कि आप उसको क्या रिप्लाई करना चाहते हो, सामने वाले मेल को, या फिर आप फॉरवर्ड क्या करना चाहते हो. जैसे आपको व्हाट्सएप में आप जस्ट क्लिक करके रखोगे, फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, वैसे मेल में भी आता है, या वो मेल आप किसी और मेल रिसिपेंट को फॉरवर्ड करना चाहते हो, या फिर आप उसको सेव कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो. ओके, या फिर उसके अटैचमेंट को व्यू कर सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन डू विद द मेल्स इनटू योर मेल बॉक्स. एंड हाउ यू कैन मैनेज योर ईमेल एड्रेस. कीप योर इनबॉक्स अनक्लस्टर्ड. ओके, सो हम सबको पता कि जितने भी मेल्स होते हैं सारे हमारे डेटाबेस के अंदर सेव होते हैं. ओके, सो उसके अंदर कुछ यूजफुल मेल्स भी हो सकते हैं एंड अनयूजफुल भी हो सकते हैं. तो लाइक 1 साल पहले का, 2 साल पहले का अनयूजफुल मैसेज ईमेल्स में क्या हो सकता है, कोई बता सकता है. जैसे आप स्विगी से ऑर्डर किए कुछ तो खाने का, so from the next time you'll be getting emails from them like these are the new dish from here, just try. Okay, so these kind of mails you'll be getting after subscribing with your original email address. So that's why I told you to keep two email address, like primary and the secondary. So secondary you can use. So in the primary, the inbox of the mail would be free. Okay. And then delete the mails which you don't need. You have to delete the mails on the particular time. So your email address should be free. And you have to create a folder like in how you could do like in file manager आप मल्टीपल फोल्डर बना सकते फोटोज वीडियोस के लिए. उसी तरह से आपको ईमेल में भी, जीमेल के में भी बनाना चाहिए, ताकि जितने भी ईमेल्स आए सारे एक जगह, इंस्टेड ऑफ कमिंग वन प्लेस, अपने अपने जगह पे अपने अपने फोल्डर के अंदर वो सारे ऑटोमेटिकली दे कम.
And the filter, the spam option is there into your Gmail. Anybody know? Option. Yes, sir. Yeah. सो अगर से आपको कोई मेल भेजता है जिसके अंदर कोई मलेशियस लिंक होती है तो डायरेक्टली वो स्पैम में जाता है। ओके, सो सर स्पैम में अगर पार्ट है मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली, हाँ। सो अगर से इनकेस मलेशियस हुआ तो स्पैम में जाएगा। तो जस्ट आप अगर से स्पैम में जाके ओपन करने का ट्राई करोगे तो ओपन हो भी जाएगा, बट वो गूगल के डेटाबेस को लग रहा है दैट ईमेल इज मैलिशियस। ओके, बट हमने बहुत बार देखा if some company is sending your email and it directly goes into the spam, and they, again they will tell you to open your spam and click on that link. So you have to think twice when you are clicking spam and you are visiting some website through clicking on the spam box. Okay, because that couldn't be safe if you are clicking on that. And these are the email etiquette. So subject line and the summaries for the messages, allow time for the reply. These are the things which you can consider while sending and receiving the mail. And like reread before you send. So every time if you are sending any kind of important mail, just read properly, because once it's sent, it's sent. There is no delete for everyone option like in WhatsApp, and I think it is in Instagram also, and read option. And don't reply to all the useless necessary messages. Okay, if anything requires to have any kind of reply, so that message you can only reply, and unless and until that is important, you don't reply, just deny that. Okay, so these are the points you can consider in email etiquette. And when we talk about the email, it consider a lot of things like email letter, and Hawk says email is not confidential when forwarding one. Okay, so if you are getting any kind of mail, so you have to think like whether it should be forwarded by me or it shouldn't. Like in WhatsApp, आपको अगर से कोई फॉरवर्ड आता है तो आप उसको सोचना चाहिए कि आपको उसको फॉरवर्ड करना है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी आपके फॉरवर्ड को देख सकती है कि आपका फॉरवर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ और लास्ट टाइम तक कहाँ से किसने किसने उसको फॉरवर्ड किया है। ओके, सो अगर सो जस्ट गुड मॉर्निंग का गुड पेज होता है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर सो किसी के गवर्नमेंट को लगता है कि इन केस दैट शुडंट बी फॉरवर्ड, एंड इवन दो इफ यू आर फॉरवर्डिंग, देन दे कैन टेक एक्शन ऑन यू। ओके, सो थिंक twice thrice to forward anything digitally, because yesterday we have learned the cyber laws. Okay, so there are many sections if we're destroying any kind of privacy of any person or deleting any kind of data. So there is a lot of section, and compensation is also there. Okay, so we should aware this kind of thing. If we are as a we are youth, we should aware this kind of thing. So any question regarding email or a Gmail, guys? Hello. No, sir. Okay. Guys, can anyone tell me कि कौन सा ज्यादा सिक्योर होगा, ईमेल या फिर जीमेल ज्यादा सिक्योर होगा? कोई बता सकता है? Anyone? Gmail. Gmail. Exactly. Gmail. Gmail would be more safer than email. Okay. क्योंकि ईमेल जो जहाँ पे यूज होता है, कोई कंपनी हो सकती है या फिर किसी दूसरे का ईमेल हो सकता है, बट जीमेल की सिक्योरिटी से हम सब लोग अवेयर है। हम अपने कितने सारे डेटा गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं डे टू डे लाइफ में। ओके, सो जीमेल इज मोर सिक्योर देन ईमेल। एंड देखते भी और आगे क्या। टेम्प मेल का नाम सुना है किसी ने? डज एनीबॉडी नो अबाउट टेम्प मेल? व्हाट इज टेम्पररी मेल्स? नो?
Yes, sir. So just tell me what is temp mail. Then we'll do practical on that. So if we want to log in a website using the and that needs a Gmail, we can go on Exactly. to some website and we can get a temporary mail there. Exactly. So this is also called as temp mail or a 10-minute mail, which will be for temporary basis, which is not permanent. So here you can see the mail which I'm getting. This is temporary mail. I think few of you have used this kind of website. To see if there is any kind of website, like I will open one website. And if that website requires login, so you can use this temp mail to log in into that website. Login. You see there is a login page. I will use this to log in, register. I will use this. Sign in. See, I already have used this page. This temporary mails to log in into this website, Swig 10381, as a temporary mail. Okay, and the password which I also set. So you can also again use that temporary mails to log in into this kind of website which require login to access that website. Okay. Should I show you or you know? So like this, you can use temporary mail. Like this, you can use temporary mail to log in into login pages. Okay. See, if you will take this email address and if the website is sending activation request, even though you will be getting this would be your inbox, will be getting messages over here. Okay. So अगर से आप अपने जीमेल एड्रेस से मुझे इस पे मैसेज भी कर रहे हो इस पे, सो मुझे यहाँ पे उसके मैसेज भी दिखेंगे कि आपने क्या मैसेज किया, या फिर अगर से कोई वेबसाइट ने एक्टिवेशन लिंक भेजा तो उसके एक्टिवेशन लिंक भी मुझे यहाँ पे दिखेंगे. ओके. तो टेप मेल क्लियर है गाइस. सो अभी हम सबको अपना टेम मेल यूज करना चाहिए वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए, बिकॉज इट विल बी मोर सेफर फॉर आवर मेल इफ यू आर यूजिंग दैट आवर प्राइमरी मेल एंड द सेकेंडरी मेल. So we have to just log in into that website. Use Temple always to log in into any kind of website which require login page. Okay. Yes, sir. Yes. Yeah. And anybody have used it SMS bomber, bomb it up, like किसी ने bomb it up use किया है? Yes. किसी फ्रेंड के ऊपर किया रहेगा फोन पे या फिर किसी रिलेटिव पे किया है? Yes. Yes. अगर आपका फ्रेंड इसमें नहीं है तो Yes, आप sir. बता सकते हैं. ओके. सो इसका भी बॉम्ब इट अप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो, और टी बॉम्ब भी शायद एंड्रॉयड है, आप कर सकते हो, बट मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा दूंगा टी बॉम्ब का. ओके. टी बॉम्ब का we can use this टी बॉम्ब application into our Kali Linux. Okay, so practical we'll see. And प्रैक्टिकल में आपको दिखा दूंगा. अभी जेड फिशर इज अ टूल विच वी कैन यूज फॉर क्रिएट फिशिंग पेजेस. कल मैंने आप लोग को बताया था कि फिशिंग क्या होता है एग्जैक्टली. कोई मुझे जस्ट बता सकता है फिशिंग क्या होता है एक दो लाइन में? एनीवन? So when we access somebody's website, in that we log in, वो login और ID सामने वाले को जाता है. एग्जैक्टली. अभी हम लोग एक फेक पेज बना के देखेंगे जीमेल का. ओके. और वो सामने वाले अगर से बंदे को भेजे और अगर से वहां पे अपना जीमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करेगा, हम लोग यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं. विल हैव दैट प्रैक्टिकल एज वेल. ओके. सो बी देयर.
we'll have that practical once we complete this slide. Okay. Or should we have practical right now? Yeah, we'll do. Right. Yeah, right now we'll do. Okay. So आप लोग के अगर से लैपटॉप में सब लोग सबसे पहले VMware इंस्टॉल कर लो. What is VMware? This helps into virtualization. See, this is VMware workstation. आप लोग को जस्ट डाउनलोड करना है. जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करना है. VMware. So you can download from here VMware workstation. Okay, this will be this will be giving you platform to host virtually machine. Okay, so आपको विंडो के लिए करना, आप यहाँ से डाउनलोड नाउ करके डाउनलोड कर सकते हो. ओके, फिर इसके अंदर आप काली मशीन या फिर लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो. तो जैसे मैंने यहाँ पे भी, जैसे मैं अपना VMware ओपन करूंगा, सी यू कैन सी यहाँ पे मैंने कितनी मशीन ओपन करके रखा है. 1 2 3 4 5 मशीन है मेरे अंदर. मतलब मैंने 5 वर्चुअल मशीन को होस्ट करके रखी है. ओके, सो काली लिनक्स कल मैंने आई थिंक बताया था कि काली लिनक्स क्या होता है, किस लिए यूज होता है, बताया था गाइस. अच्छा, आप में से कोई बता सकता है क्या होता है काली लिनक्स, किसके लिए यूज होता है? एनीवन? और आप काली लिनक्स कहाँ से डाउनलोड करोगे? सो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. सबसे पहले लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है काली लिनक्स, जिसका यूज सिक्योरिटी रिसर्चर्स लोग बहुत ज्यादा करते हैं. ओके, जो भी हैकिंग के फील्ड में होते हैं वो लोग काली लिनक्स ज्यादा यूज करते हैं, या फिर पायरेट सिक्योरिटी, या फिर ब्लैक बॉक्स. बट काली लिनक्स इज मोर फेमस इन अमंग ऑफ देम. ओके, फेमस बोल सकते हैं, बट पायरेट भी बहुत सही है और ब्लैक बॉक्स भी बहुत सही है. ओके, बट इन केस आपको काली लिनक्स डाउनलोड करना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो. और आपको VMware के लिए करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो. यहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और डाउनलोड हो जाएगा. फिर आपको 7-zip से उसे एक्सट्रैक्ट करना है और आप VMware के अंदर उसे डाउनलोड कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हो. ओके गाइस, सो इंस्टॉलेशन कर लेना, सो you'll have easy to practice this kind of thing if you want to do really. ओके, किसी के सिस्टम में VMware ऑलरेडी इंस्टॉल है क्या? है तो नहीं है तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. नहीं है तो कर लेने का इंस्टॉल. ओके, बट हाँ, आपका थोड़ा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हार्ड होना चाहिए. जैसे कि आपके लैपटॉप में मिनिमम 4 GB का रैम होना चाहिए. बट 54 रहेगा तो भी चलेगा. 54 नॉट, 8 GB रैम इनफ है, या फिर 4 GB रैम इनफ है, बट 8 होगा थोड़ा स्मूथली चलेगा. और SSD होना चाहिए 512, या फिर 256 भी इनफ है. ओके, और i3 या फिर i5 प्रोसेसर होना चाहिए. पेंटियम और वो सब में फिर नहीं चलेगा, बहुत लैग मारेगा. बट i5 होगा, 8 GB रैम होगा, 512 SSD होगा, देन गुड, यू कैन डाउनलोड राइट नाउ. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर. तो जिसके भी लैपटॉप में सारे कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे डाउनलोड करके हैकिंग एनवायरनमेंट अपने लैपटॉप के अंदर सेटअप करके ही कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ थिंग व्हिच विल बी सी ओवर हियर. ओके, सो काली लिनक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का. ओके, लिनक्स की बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे मैं यहाँ पे अगर से बताऊं, कोई बता सकता है कितने डिस्ट्रीब्यूशन है? मोर देन 200 डिस्ट्रीब्यूशन है काली लिनक्स के. ओके, so see guys, distribution: Slackware, Xubuntu, Fedora, Ubuntu, Red Hat, CentOS, and Kali Linux, CentOS, Rocky Linux. There is a lot of distribution, more than 200 distribution available to use. And you can use any distribution, all are free. There is no charges for them. And all are open source also. So if you know coding, you can change the source code and you can make your own Linux. Okay. So like I have already installed my Kali Linux, I'll power on to it.
It will take time for on first time, but I already have installed. It won't take time. कोई डाउट है गाइस अभी तक? Does anybody have any doubt? No, sir. No, sir. कि VMware क्या होता है, काले क्या होता है? किसी को कोई डाउट आता है ना, just unmute yourself and you can ask any time in between. Okay, guys. So there is freedom this kind. Okay. Or you can raise your hand. So here the password we can. Can I explain again, Kali? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। Sir, you're mute. Sorry guys, I forgot to unmute. Abhi now visible screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I was asking, anyone has used till terminal? What is terminal and how to use? किसी ने ये पहले यूज किया है terminal? Yes, guys, tell me. Terminal. Pardon. Yeah, this is black screen. And एक एक करके बोलो. हेलो. टर्मिनल लिनक्स में यूज किया था। Exactly. So ये लिनक्स ही है, बट ये काली लिनक्स है. So इसके अंदर ये टर्मिनल बॉक्स है, और इसको जो यहाँ पे आता है इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं. वी कैन से दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट, and this is our user, and this is host name, and this option shall you pwd means print working directory where we are working right now. See, if we type pwd, I'm working in a home and Kali. Okay. And so see guys, there are basic command. There is a lot of basic command. यहाँ पे बेसिक कमांड बहुत सारे हैं, जो मैं आपको कुछ फ्यू बता दूंगा. ओके. सो आप लोग भी अपने सिस्टम में काली लिनक्स इंस्टॉल करके आप ये सब बेसिक कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके गाइस. सो अभी अभी Yes, sir. यहाँ पे यह कौन सा साइन, डॉलर साइन. इफ यू कैन सी दिस डॉलर साइन, इट मींस देयर इज नॉर्मल यूजर लॉगिन. Okay, so which is unprivileged user, you can say. So you have to be the root user to have every all privileges. So how we go from a normal user to root as a root user? So you have to type su root. What do you mean by su? Switch user means you are switching from normal user to root user. You have to write the password of the root user and you will be the root user. If you can see this hash sign, it means you are the root user and you have all the privilege which require
root user or administrator. Exactly. Okay. And here you can press ls option. It means listing. You are doing listing. So here you can say Z Fisher. Can you see? So the Z Fisher is a tool which you can download from GitHub. I will tell you how you have to download. Just simple step is there. You have to write Z Fisher and GitHub, and you'll be getting code over here. You have to just get that code, copy, and you have to use the command called as git clone, and you have to paste that link over here and to press enter. It will be downloaded into your system. Okay. So what the message I'm getting over here that already exists Jetfisher into my system. Okay, but into your system it is not downloaded. It will be downloaded by this command. So you can use this command. Okay, I'll give all this link to the sir. You can take from them. Okay. So see, you have to go to into this directory Jetfisher. How you'll go? cd Jetfisher. Guys, समझ में आ रहा है? अगर से in case you are not getting, you can tell me anytime. Yes, sir. तो जेड फिशर के अंदर आपको क्या कंटेंट है देखने के लिए आपको एलएस प्रेस करना होगा। यहाँ पे ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये जो दिख रही है आपको जेड फिशर डॉट एस एच, ये आप एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये आपको क्या करना है, ये आपको जस्ट इसको रन करने के लिए आपको किसी को पता है कि आपको डॉट एस एच एक्सटेंशन वाली स्क्रिप्ट कैसे रन करनी है? किसी को पता, कोई आइडिया पहले से? जस्ट नहीं है फिर चलेगा, आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट रन करने के लिए bash कमांड यू कैन यूज bash जेडफिशर। ओके, सो यहाँ पे आप फिशिंग पेजेस इतने सारे बना सकते हो, दिख रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, नेटफ्लिक्स। ओके, सो किसके फिशिंग पेजेस बनाना कोई बता सकता है? चलो बनाते हैं। Paytm. पेटीएम के, ओके। So here we don't have Paytm, it is PayPal. Instagram. Instagram. Okay, see. Yes. 02 will write over here Instagram. Select the option. So traditional login page we are making. So 01 option will select. So the port 01 will use. So see. Just you have to click on this link and open this link. And आपको just ये लिंक भेजनी है सामने वाले को, जहाँ पे अगर से सेम नेटवर्क पे आपका फ्रेंड भी कनेक्टेड है, आपको जस्ट लिंक भेजनी है और यहाँ पे टाइप करना कोई मेल एड्रेस एक बोलो, जस्ट एक रैंडम लिंक, गलत भी रहेगा चलेगा। यूजर नेम बोले या फिर जीमेल एड्रेस। यूजर नेम किसी का बोल सकते हो, मैं अपना ही डालता हूँ, आकाश 123। ओके, सो जस्ट ये ओरिजिनल नहीं है, आप जाके चेक मत करना। और यहाँ पे पासवर्ड में डाल देता हूँ आकाश 333। ओके, यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको उसका अकाउंट का पासवर्ड मिल जाएगा और उसका पासवर्ड भी मिल जाएगा। ओके गाइस, सो दिस इज फिशिंग अटैक। आप अगर से अपने फ्रेंड को भेजा, आपके फ्रेंड ने वहां पे if he enter a username or a password, so you can have his username and account password. Okay, like this, and it is stored in this file username.dat. So control C will do and ls. So username.dat, how we can open is from cat command. Okay, so like this, see, Akash 123 was the username and the password was Akash 333. दिखा?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। एंड हम लोग मेल पेज भी बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बैश कमांड बताया लॉगिन करने के लिए, आप इससे भी लॉगिन कर सकते हैं .// से। अभी हम लोग गूगल का फिशिंग पेज कैसे बनाते थे, यहाँ पे गूगल दिख रहा है, कितना ऑप्शन है गूगल का, नंबर 3. कितना है गूगल, 03। 03. सो जस्ट यहाँ पे 03 लिखेंगे, इंटर। क्या बोल रहा है अभी, आपको गूगल का नया पुराना वाला पेज बनाना है, नया वाला बनाना है, या फिर वोटिंग पोल बनाना है। सो मैं जस्ट ओल्ड लॉगिन पेज लेता हूँ, तो कितना लिखूंगा, 01। ओके, इंटर। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट करूंगा तो मैं सिर्फ मेरे नेटवर्क पे कर सकता हूँ, एनजी रॉक करूंगा तो इंटरनेट पे कर सकता हूँ। ओके, और लोकल होस्ट मीन्स इंटरनेट सिर्फ मैं अपने नेटवर्क में कर सकता हूँ। एंड with the help of ngrok I can send that link to person sitting in the US also, and I can have that credential which is he is entering into that phishing pages. Okay, so यहाँ पे local host के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 01 करूंगा, enter. So server has been begun, so just ये लिंक पे जाना है मुझे, और यहाँ पे मुझे मेल एड्रेस डालना है। कोई अपना मेल एड्रेस बताना चाहेगा? रैंडमली कुछ भी बता दो, गलत भी रहेगा चलेगा, या फिर अपने फ्रेंड का भी बता दो चलेगा। sid@gmail.com. Pardon? sid@gmail.com. साहिल, sid SID. HID SS. SID SID। @gmail.com. ओके ओके, एंड द पासवर्ड में हम लोग क्या डाल देते हैं, सिड, या फिर 1 2 3 डाल दें, 1 2 3 4। ओके, Yes. मैं यहाँ पे साइन इन क्लिक करता हूँ। ओके, सी गाइस, बूम, हियर यू कैन सी अकाउंट। अगर से आपने अपने फ्रेंड को लिंक भेजा और आपके फ्रेंड ने वहां पे लॉग इन किया, ये सो उसका आपको अकाउंट यूजर नेम मिल जाएगा, और वहां पे उसका आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, वो लिंक जहां जहां पे जाएगा और आपको वो पासवर्ड मिलते जाएगा। जैसे ये पहले सिड मिला, अभी मान लो कोई और बंदे के पास वो लिंक किसी ने भेजा, सो वापस से वो लॉगिन करेगा। सो आप बता सकते हो कोई और जीमेल आईडी, जस्ट रैंडमली कुछ भी, सिड 2, ठीक है चलेगा ना, ले सकते एग्जांपल के लिए। ओके, यहाँ पे पासवर्ड में क्या डाल रहा है वो, रूट डाल रहा है इनकेस, चलो लेते हैं, साइन इन करेगा, दिखा, तो वहां पे वो भी मिल गया, सिड 2 का भी जीमेल एड्रेस मिल गया, वो जो उसका सिड 2 बड़ा भाई है सिड का। ओके, इज यंगर ब्रदर, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया। वो कहाँ पे स्टोर है, यूजर नेम डॉट डैट के अंदर सारा सेव है। एंड फॉर एग्जिट यू हैव टू प्रेस Ctrl+C, and you can put ls command, and you can read this file to see again that kind of password, like see card, see this is username of Sid and this is password of Sid, this is username of younger brother of Sid, like Sid2, and the password of Sid2. Okay, so how dangerous to have that any kind of phishing pages and authenticate that pages. So हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है इन केस, अगर से आपके किसी ने फ्रेंड ने भेजा, जस्ट एक लिंक आया और आपको लिंक पे जस्ट क्लिक करके आप अगर से यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, सो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आपका सीधा यूजर नेम पासवर्ड सामने वाले अटैकर के पास जा सकता है, जैसे अभी मुझे आया है। ओके, Yes. so this is phishing attack. So with the help of this tool we can also have LinkedIn phishing pages, Facebook phishing pages, PayPal, Netflix, any phishing pages we can create over here. Okay, Sir, if two-factor authenticator लगाया, मतलब हाँ सामने लॉगिन करेगा तो भी OTP तो हमें ही आएगा ना? एग्जैक्टली, ओटीपी तो जो ऑथेंटिकेट जिसके पास नंबर है उसके पास जाएगा, बट उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनके सेट नहीं किया है, डायरेक्टली उसने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर किया। मैं भी सो मीन्स इफ मतलब मेरा जीमेल आईडी है, मैं दूसरी जगह पे कहीं पे एक्सेस करता हूँ तो मांगता ही है वो OTP. एग्जैक्टली वो मांगेगा आपका पासवर्ड, ओटीपी। तो सी
अभी पुराने वाले जितने भी जीमेल एड्रेस थे वहां पे ओटीपी का ऑप्शन या फिर विंडो 7 या फिर विंडो एक्सपी में, विंडो 8 में नहीं मांगता था। बट अभी टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं जिसके अंदर ओटीपी बाईपास भी होता है। सो आप ओटीपी भी कैप्चर कर सकते हो सामने वाले बंदे का। जब आप यूजर नेम पासवर्ड कर सकते हो तो आप ओटीपी भी कर सकते हो। ओके, व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, यू हैव टू पुट द की लॉगर इनटू हिज फोन। की लॉगर क्या होता है, किसी को आइडिया है? मैसेज ओके, डाइवर्ट आपके फोन पासवर्ड टाइप। एग्जैक्टली वो अगर से पासवर्ड टाइप करेगा या फिर कोई ओटीपी टाइप करेगा, सो ओटीपी या फिर पासवर्ड आपको दिख जाएगा वहां पे, अगर से सेशन आपके पास है की लॉगर का तो। ओके, सो इंटेंशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमो इज टू कीप आवरसेल्फ सेफ। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप जस्ट फिशिंग पेजेस क्रिएट करके अपने फ्रेंड को भेजते रहो। ओके, आप खुद को कैसे सेव कर सकते हो कि आपको कोई फिशिंग पेजेस भेजता है कि आप उसको रिप्लाई करना है कि नहीं करना है, जस्ट आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। ओके, so cyber security we have to learn the technique how we use to hack, and you have to use that technique to keep yourself safe from black hat hackers and keep safe to others as well. Okay guys, and there is one more tool. Someone waiting in the lobby. And this was the temp mail which you can use to log in into any kind of pages. And GitHub is a tool, or you can say website, through where you can download all the cybersecurity what we can say tools. Here you will get all the zip file or the cloned link as well. Okay, so you can download from GitHub any kind of cybersecurity tools. So I told you what is Jetfisher. Jetfisher is a phishing tool with the template of 30 plus more, and you can use these tools to have a fun or educate yourself how phishing could be dangerous to you. Okay, what is call spoofing? Anybody know what is call spoofing? अनलिमिटेड कॉल टू एनी Unlimited, pardon? टू कॉल टू एनी पर्सन। Hello. पर बिना पे जो कॉल होता है, नंबर इज नॉट। एग्जैक्टली, हाँ, बिना पैसे के जो कॉल होते हैं, इट मीन्स आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है फिर। बट व्हाट्सएप पे भी तो बिना पैसे के कॉल होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं दिखता है आपका। एग्जैक्टली, वहां पे आपको आप उसके सामने वाले का नंबर नहीं दिखता है, या फिर आप किसी और का भी नंबर वहां पे शो करा सकते हो। ओके, सो किसी को पता हाउ वी परफॉर्म कॉल स्पूफिंग, और व्हाट इज कॉल स्पूफिंग, हाउ इट कुड बी परफॉर्म? एनीवन? अच्छा, किसी को कॉल आया है, किसी को खुद के नंबर से कॉल आया है कि जस्ट आप चेक कर रहे हो और आपको खुद के नंबर से ही कॉल आ गया है? नो सर। ओके, सो दैट कुड बी अ कॉल स्पूफिंग। वहां पे आपको खुद के नंबर से ही कॉल आ जाता है। ओके, वहां पे आप सामने वाले को कौन सा भी नंबर आप प्रीव्यू करा सकते हो, इवन कि आप 100 भी करा सकते हो, और 1 2 3 4 5 एनी काइंड ऑफ वीआईपी नंबर यू कैन प्रीव्यू। ओके, सो अगर से आपको कोई कॉल स्पूफिंग में कोई भी वीआईपी नंबर या फिर कोई भी नंबर दिखता है, तो आप सोफिस्टिकेटेड नंबर दिखता है और सामने से कुछ डिमांड करता है, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस ओवर देयर whether I should follow this or not, because this could be dangerous. This could be from that malicious person. Okay. Generally, day-to-day life, may now technology has improved a lot, where we are getting this kind of call in day-to-day life, where the scammers are always there to have to cheat the people.
Okay, so we should educate ourselves that call spoofing things also exist into this world, and anybody can call to anyone with the from anyone's number. Okay, you can call to your friend by your third friends. So that is called spoofing. Okay, can anyone share me a number so I can call? No, that demo shouldn't be over here. Okay. Do you know what is email tracing, guys? Anyone? So email tracing means everything about email. So everything information about email, like say will have, I will tell you. So see, I'll open this email, like say this is email, and you have to go to here, show original, and you have to copy this thing, which is you can see over here, and you have to paste in MX Toolbox. Okay. So it will give you further information about that. This is forbidden error. लेट्स दूसरी वेबसाइट पे ट्राई करते हैं. ये पेड वेबसाइट है. MX Toolbox was working yesterday. Let's try once again and we'll see if it is not working. आपको जो ईमेल हेडर होता है उसके अंदर आपको फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में कि वहां पे क्या क्या है, जीमेल एड्रेस के आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. ओके, तो जैसे आपको कौन से आईपी एड्रेस से आया है. ओके, और उसका टाइम जोन क्या है कि आपको मेल एड्रेस वो कब आया है और कौन से आईपी एड्रेस से आया है. कि एग्जैक्टली मान लो अगर से सामने वाला बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि वो इंडिया से बात कर रहा है, बट वो आपको कहीं आप कोई यूएस के आईपी एड्रेस से आया है, तो वहां पे आप क्लिप ये उसका हेडर देख के पता कर सकते हो कि वेदर ही इज लाइंग और बीइंग टू जस्ट सही बताने की कोशिश कर रहा है वो. और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिख जाता है. ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपरली विजिबल नहीं है बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ ये टेस्ट करके आ रहा है तो ये सारी चीज चेक है, बट दिस कुड बी malicious वेयर इट इज सेइंग क्रॉस साइन. ओके, यहाँ पे हेडर वगैरह दिखा रहा है कि डिलीवर किसको हुआ. सो दिस इज माय जीमेल एड्रेस वेयर इट हैज बीन डिलीवर्ड. ओके, एंड देयर इज एक्स गूगल सोर्स कोड and there is a lot of things which you cannot see into that Gmail inbox. So you can see here, like see, to Durgesh, sorry, do you know he has been sent, and this is message ID and the date and time where it has sent, and what was the format and all, everything is there, and you can use to analyze any kind of email header if you are getting. Okay. What is email takeout? Okay, guys. So we'll see what is email takeout. Sir, can you show the previous slide again? Pardon? Can you show the Hello. previous slide again? Previous slide. This Yeah. one. Email. Yeah. Yeah, email address. Yeah, sir, it's done. Thank you. Okay, so आप स्क्रीनशॉट ले रहे थे क्या इसका? No, sir, I am noting down the link. Okay, so don't worry, guys. I'll send this PPT into that group. Okay, so you'll be getting this slide as well also from there. So there you'll be getting all the links. Okay.
now we'll see Google Takeout. See, यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटी को डिसेलेक्ट करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। सी, अभी मैंने यहाँ पे सारे डिसेलेक्ट कर दिया। सो गूगल के आपका जो भी जीमेल आईडी है वहां पे आप क्या क्या कॉन्फ़िगर करके किसको किसको आप मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कैलेंडर है, आप उसको आपके जीमेल से अटैच करना चाहते हो। सो टेकआउट में आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है जहाँ से आप यू कैन सेट ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फॉर योरसेल्फ लाइक कॉन्टैक्ट। सो आप जो भी कॉन्टैक्ट गूगल में सेव करोगे, सो आप अगर से इनकेस अपना मोबाइल चेंज करते हो ना, then you have to just log in through that Gmail ID through that you have configured. So you'll be getting all the context from there. Okay. यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो, आपके जितने भी जीमेल एड्रेस है, अगर से आपको उनका बैकअप लेना है तो आप वो सब भी ले सकते हो। लाइक सी, here you can see Gmail address. You have to select this and you have to go to multi format, and here you can see how you can get chat वगैरह, ये सब भी आप ले सकते हो। Okay. And you can select on this thing which you want. Now go to next step and see if you want the notes or the backup for your Gmail address, you can take backup. See, यहाँ पे आपको export once का option दिख जाएगा, export 2 month for 1 year। यहाँ पे आप 2 बार 1 साल में आप ले सकते हो। आपको किस फॉर्मेट में आपको उसका बैकअप चाहिए, जिप फाइल में या फिर TGZ में ले सकते हो। आपको साइज इतने जीबी तक का मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू पे, इफ इज आस्किंग यू हैव टू पे। ओके, एंड यू कैन एक्सपोर्ट योर डेटा ऑफ जीमेल। ओके गाइस, सो इफ आपके अगर से जीमेल में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आप उसका बैकअप लेना चाहते हो, सो आप ये ईमेल गूगल टेकआउट से आप ले सकते हो, या फिर आप यूट्यूब के अपने हिस्ट्री का बैकअप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, सो नाउ विल ट्राई टू गेट टेक बैकअप। दिस इज गूगल टेकआउट। I will deselect all and I will select only one thing, like Google activity I can select, or YouTube history I can select for backup. I think mail I should select. Where is Gmail? See, this is Gmail. I will select this and will have next. Export once, size will be zip file, no problem. And the size would be less than 2 GB. Google is creating a copy of a file from mail. Okay, so once the Google will complete the copying, he will be sending the mail on my mail. Okay, that's all the data of Gmail into zip format. Okay guys, so if you have any important thing into your Gmail, you can take that backup. Okay. And here we'll see how email works. Okay, so यहाँ पे जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया था कि ईमेल सर्विस कैसे काम करती है, कैसे आप भेजते हो किसी सामने वाले को मेल, और कैसे आप रिट्रीव करते हो। सो यहाँ पे जैसे आउटगोइंग मेल है, ये फर्स्ट द सेंडर पीसी कनेक्टेड टू द एसएमटीपी सर्वर। जैसे आप मेल भेज रहे हो तो सबसे पहले एसएमटीपी से कनेक्ट होगा, जिसका पोर्ट नंबर 22 होता है। पोर्ट नंबर क्या होता है, किसी को आइडिया है? सो गाइस, पोर्ट, हाँ, हेलो, No, sir. नो Yes, सर, sir. जस्ट टेल मी एनीथिंग विच यू नो, यू कैन से। पोर्ट 20 नंबर कंट्रोल के लिए 21। एसएसएच के लिए 21 यूज होता है। एंड यस एग्जैक्टली, आप पोर्ट नंबर यानी इट इज सेट ऑफ रूल्स। अभी देखो इंटरनेट का जमाना है, इसके अंदर एवरी डिवाइस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। नाउअडेज देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइस, as you know the population of India or the world has been increasing. Okay, so the IoT devices means mobile, laptop and everything which require internet connection, they are keep on increasing.
So everyone require internet connection. So they will communicate to each other with a particular set of rules. Okay, so the rules which are defined for them. So the port number is the only set of rules that जैसे आपको SM mail भेजना है, तो they will use the port number 25, which is set of rules which is being set for them to transfer that mail. Yes. हेलो, बोला किसी ने कुछ? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो SMTP आप ये पोर्ट नंबर यूज होता है मेल को सर्वर तक भेजने के लिए, अगर से सेंडर ने भेजा है। ओके, सो SMTP, the mail will go to SMTP server, then it will go to DNS server, where what is DNS server? डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे गूगल पे हम सबको पता है हम लोग क्या डालते हैं। जैसे आप वहां पे facebook.com डाले तो बैकग्राउंड में क्या होता है पता है, उसकी IP रिजॉल्व होती है। सो अभी हमको सबको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ इंटरनेट का लैंग्वेज समझता है, 0101 समझता है उसको। वहां पे कोई स्ट्रिंग नहीं समझता, कोई डोमेन नेम नहीं समझेगा। मुझे वहां पे जैसे मैं facebook.com डालूंगा, बैकग्राउंड में उसकी IP रिजॉल्व होगी, फिर वो जाके फेसबुक के सर्वर के पास IP के थ्रू जाएगा। ओके, या फिर मैं उसका रिवर्स लुकअप भी कर सकता हूँ, या फिर रिवर्स लुकअप करूंगा, या फिर फॉरवर्ड लुकअप मीन्स यू आर resolving from domain name to IP address, and in reverse you are resolving IP address to domain name. So that is DNS server। वहां पे आपका डोमेन नेम से IP में कन्वर्ट करता है। ओके, सो आपका जो भी SMTP का सर्वर रहेगा, सामने वाले का IP में वहां पे प्रॉपरली सेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा जहां पे द मैसेज डिलीवर होना है। ओके, फिर वहां पे सामने वाले के वापस से, ये भी सर्वर के पास आ चुका है, अभी रिसीवर के पास आने के लिए वापस से वो सर्वर से होके जाएगा SMTP या फिर POP3 IMAP के थ्रू। ओके, अभी रिसीवर जब भी मैसेज रिट्रीव करेगा तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? POP3 जिसका है 110 होता है, और IMAP जिसका 143 होता है। ओके, एंड मैंने पहले बताया कि POP3 के अंदर हमारे पास वी कैन हैव द कॉपी ऑफ दैट जीमेल जो हमको मिला है इनटू द डेटाबेस। ओके, एंड POP3 was we can say outdated, because कि अगर से आप POP3 जब यूज होता था प्रोटोकॉल, सो डेटाबेस से अगर से आपने मैसेज एक बार रीड कर लिया, सो डेटाबेस से डिलीट हो जाती थी, उसकी कोई कॉपी डेटाबेस में हो नहीं होती थी। ओके, बट अभी के टाइम पे जब से POP3 यूज होने लगा है, उसकी कॉपी डेटाबेस के अंदर अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से आप यूज कर सकते हो। और IMAP भी एडवांस वाला है। So these are the protocols which is used into email sending or receiving. Okay, so SMTP or IMAP POP3. Okay, so a full form of SMTP, simple message transfer protocol, post office protocol, and internet messaging access protocol. Okay guys, any doubt इसमें how email works? नो सर। Okay, and guys, this is, we can say this is valid and invalid email. So this is example of invalid email. So email जैसे कि आप प्रोटॉन मेल हो गया, जोहो मेल हो गया, आउटलुक हो गया, सो आप अगर से वहां से रखते हो, तो यहाँ पे आप फॉर हाइफन इन बिटवीन यूज नहीं कर सकते ईमेल के अंदर। और ईमेल के अंदर आप बिटवीन टू अल्फाबेट यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द एनी काइंड ऑफ हाइफन इन बिटवीन टू अल्फाबेट, यू कैन नॉट यूज बिफोर @sign, and you cannot use two dot consecutively, you have to use only one dot between two alphabet. I, and email address cannot be begin with the dot sign, it should be begin with the alphabet sign, alphabet like ABC or any along with your name. And you cannot use special character like $, in between two alphabet, you can use just underscore to separate anything like name and surname. Okay, so this is example of invalid, and this is example of valid email address. So in future, if you are setting your email address, you can have this. And we'll have advantages of email. So as we know, email service is free to use, and the Gmail is also free to use. Okay, and we can have attachment along with the videos, document, and any kind of text file, and any kind of other file which we require to send. Okay,
ईमेल का यूज करके हम लोग आजकल जीपीजी का जो फोटोज होते हैं वो भी सेंड करते हैं, क्योंकि वी नो दैट व्हाट्सएप पे क्वालिटी उसकी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। सो अगर से आप मेल पे भेजो तो क्वालिटी सेम टू सेम आपको मिलती है सामने वाले रिसीवर एंड पे भी। ओके, सो क्वालिटी इज डिपेंड्स। सो दैट्स व्हाई जीमेल यूज ज्यादा भी करते हैं। अगर से व्हाट्सएप पे आप किसी को भेजते हो तो क्वालिटी वो थोड़ी कम कर देता है, ताकि स्टोरेज उसका थोड़ा बच जाए, जो सेंडिंग का बैंडविड्थ थोड़ा कंट्रोल हो जाए। ओके, and there is a lot of advantages of Gmail also, means Google Mail, which is service provider of email. Email is a way more secure than email client. Okay, so as we know, Gmail is more secure than email client. Gmail service provider virus detection feature is great. Okay, so as we know, Gmail के अंदर वहाँ पे spam का ऑप्शन आता है कि जितने भी हमें मेल आएंगे सारे स्पैम के अंदर चले जाते हैं। मुझे एवरी टाइम उसको चेक नहीं करना पड़ेगा कि फिशिंग मेल है या फिर स्पैम मेल है। एवरी टाइम वी शुड बी a spam mail or any kind of malicious mail, we directly goes into the spam box. Okay, and into Gmail we have a color theme background option is also there. We can set according to our convenient if we need, which we this kind of feature we are not getting into email kind of thing. We can we should use or we are using Gmail because we are all the data has been already there for the Google. Like YouTube we are playing means YouTube data is for the Google Drive data, Google Docs where you are creating Google documents. This slide which I'm telling to you, it is also made Google Slides. So everything along with the Google only. So it's better to use Gmail instead of any kind of email. Okay. And these are the best service provider you can say. Like see, first of all, Gmail is the best email service provider, then Outlook and the Proton Mail, anybody किसी ने सुना है Proton Mail? सर प्राइवेसी के लिए बेस्ट है। हाँ बेस्ट है, बट प्रोटोन मेल बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योर है ये। प्रोटोन मेल सिक्योर, इवन की सिक्योर देन गूगल आल्सो। Sir, it is an onion site. Exactly. And the Zoho Mail also is there, iCloud, Yahoo Mail. Okay. I think सबका Gmail पे ही account होगा. One few of them have account on Yahoo also. And we'll have one more practical like तो काली आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। ओके, सो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सब फिजिंग पेजेस क्रिएट करने के, या फिर आप कुछ और ट्यूटोरियल के। ओके, here you can run just simple ls command. ls command is to list cd space dot dot to go back. ओके, किसी को और कुछ कमांड पता है टर्मिनल के? Yes guys, tell me. Sir, can you provide See, all command? yes, I can provide to you all. Okay, in the group I will send all the command and working of them also. Okay, so you can practice all that command. Okay, so first of all, download this Kali Linux system into your laptop, so you can practice this kind of commands, and you can download these tools like Zfisher, Daybomb. Okay, and you can have uh, that hacking environment into your system ready. Okay, I will tell you the basic command, few basic command only, just cat. Like you have to go into a T-bomb directory. So how we will go? Like cd means chain directory, and you have to start T-bomb. It will automatically take uh, T-bomb. Okay, now you have been entered into T-bomb. Where you can, how you can see here, you can see T-bomb. It means you are entering into T-bomb directory. You are already there into T-bomb directory. PWD just do this will show you the
full path where you are means print working directory. In the forward slash in the home directory there is Kali, and here then you are in the T-bomb. Okay, just do ls, and what you can see over here, there is a requirement text file. So how you have to use T-bomb, you can see on here. See, when I will type T-bomb GitHub, you'll be getting all the commands how you can download. And the first of all, you have to get the source code of this to download T-bomb. Okay, and then here you will see the command how you can use. So first of all, you have to get the following feature. Yes, pip install T-bomb you have to do for downloading packages, and just type T-bomb and you'll be see that T-bomb is running into your system. So to run T-bomb you have to type this. So everything is ready on the Google. You have to know how you can extract those things from the Google. Okay, so everything is available on the Google. Okay, so you have to type just T-bomb to run this. To see like this is a executable file. How you can run executable file? हमने पहले जेड फीचर कैसे रन किया था, bash T-bomb नो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो T-bomb सी. सो यहाँ पे आपको अगर से SMS बॉम्बर करना है, सो आप हाउ यू कैन डू, आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा SMS बॉम्बर करने के लिए? 1. सो आप जैसे 1 प्रेस करोगे यहाँ पे खुल के आएगा, और यहाँ पे आपको इट्स अप टू डेट, यहाँ पे आपको कंट्री कोड डालना है. ओके, एंटर योर कंट्री कोड यहाँ पे लिख के आ रहा है विदाउट प्लस साइन. सो कंट्री कोड कितना है? 91 एग्जैक्टली. एंटर. सो कोई अपना नंबर बताना चाहेगा यहाँ पे? 970 97 0 0 24 24 55 डबल 5 55 973. ओके. सो यहाँ पे नंबर ऑफ द SMS यू वांट टू सेंड, मैक्सिमम आप 500 सेंड कर सकते हो. सो ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट 10 करेंगे या फिर 15 करेंगे डेमो पर्सपेक्टिव के लिए. यहाँ पे आपको कितने कितने सेकंड पे आपको जाना चाहिए मैसेज, तो वहां पे मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर देता हूँ या फिर 1 सेकंड सेट कर देता हूँ. ओके, एंटर. यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड कितना जाना चाहिए, जस्ट आप रिकमेंडेड कितना है, 1 रिकमेंडेड है ना. सो आप यहाँ पे 1 कर दो ऑटोमेटिकली. और यहाँ पे आपको क्या एंटर करना है, एंटर टू रिज्यूम इट करो. तो जिसने भी नंबर बताया ना, उसको नंबर मैसेजेस आना शुरू हो गए होंगे. देखो सेंड आ रहा है. यस सर. एग्जैक्टली. सो अगर से ऐसे में 500 SMS भी कर दो ना, तो आप परेशान हो जाओगे फिर वहां पे. ओके, बट यहाँ पे देखो इसका प्रीव्यू बता रहा है, दिस टूल वाज मेड फॉर फन एंड रिसर्च पर्पस ओनली. सो हैव टू सी लाइक वहां पे आपको क्या क्या जो OTP आ रही है, क्या क्या आ रही है या फिर क्यों आ रही है. सो वहां पे आता है ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट का ऑप्शन. ओके, सो अगर से आपके फोन पे कुछ ऐसे कुछ ना करे कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आए, तो वहां पे आप ब्लैक लिस्ट या फिर व्हाइट लिस्ट कर सकते हो. ओके, सो जितने मैसेजेस है वो एक बार चले जाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे सक्सेसफुली 13 14 एंड 15. ओके गाइस, देखो ये ऑटोमेटिकली पूरा मैसेज गया, उसके बाद ये मुझे बाहर फेंक दिया. चलेगा, एक और वापस से ट्राई करते हैं रन करके. यहाँ से प्रेस एंटर टू कंटिन्यू. इस बार मेल बॉम्बर ट्राई करते हैं. मेल बॉम्बर तो अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ पे. कॉल बॉम्बर टू प्रेस करते हैं.
कंट्री कोड 91 अगेन। यहाँ पे कोई अपना नंबर बताना चाहेगा? Yes, sir. टेल मी। 860 860 530 530 1216. 1216। ओके, सो विल हैव दैट नंबर। और आपको कितना कॉल जाना चाहिए? इंटर कॉल टू सेंड। आप मैं यहाँ पे जस्ट 5 करता हूँ। ओके, इंटर कितने कितने सेकंड पे जाना चाहिए? मैंने यहाँ पे 3-4 सेकंड कर दिए। ओके, इंटर। यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड रिकमेंडेड 1 है। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पे मैक्सिमम 15 बोला है ना, सो यहाँ पे एक काम करते 10 डालते हैं। कॉल डिले इन सेकेंड, सो मैं जस्ट 1 सेकेंड डालता हूँ। नंबर ऑफ थ्रेड 1। ओके, so resume it। स्टार्ट हुआ ना आपको? Not yet. Not yet। See here it is showing कि उसने 6 भेजा but 3 already filled हो चुका है। ओके, not yet started। No, sir. Okay, so there could be, it is showing it is completed, so there could be some issue of connectivity। Okay, but yeah, it work. If you are using, if you want to use call bomber, you will be using। Okay, and there is a email bomber also, like you can do email bombing again and again on any email address। Okay, and there is a one fish email website, so this website is down, so we can use another website like email spoofing। Does anybody have any doubt till yet? No, sir. No, sir. Top 10 email spoofing website will see कि यहाँ पे आप email spoofing कैसे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट कौन सा बिलिंग प्रॉब्लम एक्सपोर्शन डेट वायरस अकाउंट, इस पे देखते जाके let's say some other website। आप यहाँ पे आप किसी कंपनी का भी मेल एड्रेस भी यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को आप एचपी कंपनी का मेल एड्रेस से आप वहाँ पे मेल भेज सकते हो। तो जैसे hp@company.com या फिर कुछ भी, जो भी XYZ कंपनी का नाम है, वहाँ पे आप भेज सकते हो कि वी आर डिलीवरिंग HP लैपटॉप टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन हट्टी and thanks for regard, anything you can write over there, and he'll be getting messages, and that guy will be thinking that he is getting messages from the HP company। Okay, so like this you all can do। This website was working fine, but now that server is down of that website। Okay, we'll see this whether it is working or not। This also is not, no problem। fake mail generator will see। किसी को ऐसे मेल आए हैं क्या कि उसको वहां पे अनोनिमस कुछ भी लिखा है और एंड वो जो हम लोग ने भी कॉल SMS बॉम्बर किया था, उसके लिए आप अगर से एंड्रॉइड में करना चाहते हो तो वहां पे अगर से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है,
तो बॉम्ब बिटअप एप्लीकेशन के अंदर आप प्रोटेक्ट के अंदर आप अपना नंबर डाल सकते हो वहां से। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि कोई और आपके नंबर पे वो बॉम्बिंग ना कर सके। ओके गाइस, सो ऑलरेडी आप लोगों ने शायद कॉलेज में किया रहेगा ये सब बॉम्ब बिटअप वगैरह। सो जेड फिशर अगर से वापस से एक बार करते, एक बार उसके वापस से प्रैक्टिकल या फिर डेमो देख लेते हैं जेड फिशर का, चलेगा? we will have some Yes, more sir. phishing pages. Okay, Yes, sir. और अभी देखो आगे का प्रैक्टिकल जो भी होने वाला है उसके लिए अगर से आपको अच्छे से आपको करना है कि इन फ्यूचर प्रैक्टिकल आप अच्छे से एंजॉय कर पाओ, तो आप खुद का सिस्टम रेडी कर लो एंड यू कैन यूज all the techniques which we will be doing in further lecture to enhance your skill into cybersecurity. Okay guys, so I think sir has told you what is the syllabus. Everyone knows what we will learn into this 7 days seminar. Here I had, I think this one is, so this is tomorrow's seminar. Here you can password, attack window, login password. Here we'll see how we can crack the password of window. If you forget the password of window, how you can crack. So these things will know, and how we can bypass the password of Linux machine. Okay, so you will have the system ready, then you will enjoy furthermore. And if also there will be no, I'll share them all the notes so you can read and enjoy. We'll do Z phishing again. So to run any kind of file, or you have to go into this directory. Which command we will be using? cd zfisher. Okay. So you are entering to zfisher. What you have to do? Just you have to run this script. How you will run? ./zfisher. And here we'll have all the, like, see, if you want to create the proton mail again, proton mail phishing page, so that what number you have to put? 17. So you have to put over here 17. Okay, so here what option you can use, what we use in the previous example, like localhost, no? So you have to enter 01. So say PHP server has been started and you have to visit this site. So what you can see over here, see, this is the login page of Proton Mail. Okay. And if you are sending this link to your friend also, who is sitting to his home, so he'll be getting this kind of page. And here he'll be writing like, see, QWEASD@yahoo.com. Okay. And the password which I'm entering, 9988776655443322. Okay, and login. So here we'll be getting all the password, like, see, account and the password. So these are the for the more example of phishing pages which you can use. And you can see if you are getting any kind of phishing pages link into your system, so avoid login into that pages. Okay, that page will work Yes, sir. as a, वो आपको एकदम जेन्युइन की तरह लगेंगे, इतना कि आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो ऐसे अटैक्स नाउअडेज बहुत ज्यादा होते हैं। अगर से एक टाइम आता है कि फेस्टिवल का टाइम, अभी फेस्टिवल का टाइम अगर से आता है, हैप्पी दिवाली या फिर न्यू ईयर आता है, सो वहां पे आपको देखो व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड आते हैं कि जस्ट वहां पे एंटर करो, और आप अगर से वहां पे अपना नेम डालते हो तो वहां पे हैप्पी दिवाली टू यू ऐसे आपको शो करता है। जैसे आपने आकाश डाला तो हैप्पी दिवाली टू यू आकाश, और उसके साथ कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी दिखते हैं। व्हाट्सएप पे ऐसे फॉरवर्ड आते हैं। ओके, बट ऐसे फॉरवर्ड के साथ अगर से वहां पे आपको अलाउ डिनाई का कुछ ऑप्शन आता है, वहां पे कुछ परमिशन मांगता है, इट मींस दैट कुड बी मैलिशियस। ओके, सो वहां पे वो डायरेक्टली आपका सेक्शन जो है किसको मिल जाएगा? अटैकर को, जिसने आपको वो भेजा है। ओके गाइस,
सो अवॉइड दैट काइंड ऑफ फॉरवर्ड, एंड वहां पे अपने सिस्टम में आपको फोन के अंदर जैसे ही आए आप जस्ट उस पे अवॉइड, ट्राई टू क्लिक ऑन दैट, आप उस पे इवन डोंट इवन क्लिक ऑन दैट, जस्ट डिलीट, और instead of forwarding to other people, just click, that would be best for you. Okay, and for others also, जैसे आपको मिला आपने जस्ट डिलीट कर दिया तो उधर ही खत्म हो जाएगा, बट अगर से आपने ट्राई किया, आपने आगे फॉरवर्ड किया, तो लोग उसके शिकार बनते जाएंगे। तो ओरिजिनली जिसने उसको जनरेट किया रहेगा उसके पास विल हैव ऑल द एक्सेस और द वेब कैम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। ओके, जस्ट आपको बिलीव नहीं होगा, जस्ट आपको जस्ट वो लिंक पे आप क्लिक करोगे और वहां पे आपको उसने कैमरे का परमिशन मांगा, जस्ट आपने दे दिया, सो आपका वो आपको जब चाहे वो मॉनिटर कर सकता है सामने के वेबकैम से। ओके, सो इन फर्दर यू विल गेट टाइम, सो वहां पे भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका भी। ओके, कि जस्ट हाउ यू कैन मॉनिटर द वेबकैम by sending just an happy Diwali message to everyone. Okay. यस सर। हाँ, तो अगर से इन फर्दर लेक्चर वी विल गेट टाइम, सो वहाँ पे वो करके देखेंगे। बाकी ईमेल एड्रेस और एसएमएस वगैरह में कुछ डाउट है अभी तक? यहाँ पे आप अगर से नो सर। मल्टीपल आप अगर से बनाना चाहते हो तो आप मल्टीपल बना सकते हो, जैसे आप कोरा का, लिंक्डइन का, यहाँ से फेसबुक पे तो सब लोग होंगे, फेसबुक पे आप बनाना चाहोगे एक, आई थिंक, तो 01 टाइप करो, यहाँ पे ऑप्शन क्या, ट्रेडिशन, व्हाट? सर इधर जो कंपनी के नाम है इसके अलावा भी हम लोग अपने में से डाल सकते कंपनी जो भी रहेंगी आउटसाइड। से यहाँ पे इतना जितना आपको शो कर रहा है, इट मींस दैट टूल जेट फिशर इज प्रोवाइडिंग फिशिंग पेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनी ओनली। ओके, अगर से आपको इसके अलावा कोई और कंपनी का बनाना, इट मींस यू हैव टू डाउनलोड द अदर टूल। सो जेट फिशर इज नॉट ओनली टूल, देयर इज थाउजेंड्स ऑफ टूल अवेलेबल ऑन द गिटहब पेज। ओके, सो वहां से आप दूसरा टूल भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप बना सकते हो। ओके, सो आप जो चाहे जिसका काम चाहो उसका बना सकते हो। ओके, इवन कि आप जस्ट उसका सोर्स कोड उठा के भी बना सकते हो उसकी फिशिंग पेजेस को। सो ऑप्शंस बहुत है। ओके, सो यहाँ पे भी जैसे मैंने फेसबुक का लिया था ना, तो यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल लॉगिन पेज बनाता हूँ, या फिर मैं सिक्योरिटी लॉगिन 03 ऑप्शन चूज करूंगा, एंड 01 एज अ लोकल होस्ट, एंड आई विल गो हियर। यहाँ पे ये मेरा फिशिंग पेज आया। सो यहाँ पे अगर से मैंने यूजर नेम डाला फेसबुक का, ये कुछ फेसबुक का पुराना वाला वर्जन दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा ऐसा दे इसका। फेसबुक पे मैंने यूजर नेम या फिर आकाश123 डाल दिया, और पासवर्ड में अ, 1122, या फिर चलो पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा मैंने क्या डाला, आप मुझे बताओगे पासवर्ड क्या डाला। ओके, मैंने पासवर्ड डाल दिया, वेरीफाई किया। सो यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट आ गया, पासवर्ड आ गया। मैंने पासवर्ड क्या डाला था? पासवर्ड 123। एग्जैक्टली। तो वहां पे आपको जो भी चाहे वो विजिबल रहे या ना रहे, आपको सीधा जो भी आपका विक्टिम है वहां से आपको सेशन का पासवर्ड या फिर अकाउंट का आपको दिख जाएगा। ओके, एंड आप वहां पे ngrok यूज कर सकते हो। ये तो मैं अपने नेटवर्क पे कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इसीलिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बट अगर से मैं आपको भेजूँ और आप अगर से उसमें अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, तो वो मुझे भी उसका एक्सेस मिल जाएगा, यूजर नेम और अकाउंट का। मैं तुरंत यहाँ से आपके इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक पेज पे लॉग इन करके पासवर्ड चेंज कर दूंगा, और जीमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब वहां से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो फिशिंग पेजेस आर रियली, वो बहुत डेंजरस होते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको पता नहीं है उसके बारे में कि आपको कैसे पहचानना है। सो मैं इतने एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप अवेयर रहो सारी चीजें। अगर से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी का भी आता है, वहां से आपको क्लिक करके कभी भी लॉग इन नहीं करना है, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम किसी भी पेजेस पे। आपको सोशल मीडिया अकाउंट पे जस्ट लॉग इन ही नहीं करना है पेजेस पे क्लिक करके, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां से आपको लॉग इन करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, और ये सब भी ऑप्शन आप लोग को, ये गूगल ऑथेंटिकेटर का एक एप्लीकेशन होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के अंदर। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर लॉग इन इनटू
Gmail or into your Facebook or into your Instagram, you will be required that OTP which is being into Google Authenticator for that 15 or 60 second, okay, or 30 second. So every time along with the password, along with the OTP, along with both of them, you have to require that 30-second OTP, which is being into Google Authenticator application only. ओके, सो वहां से जब तक वो नहीं होगा आप लॉग इन नहीं कर सकते फिर। ओके, सो गूगल ऑथेंटिकेटर आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो एंड बेस्ट होगा। ओके, फिर वहां पे अपने फोन के अंदर आप फेसबुक इंस्टाग्राम सब में जाके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर से आप ऑन कर देते हो, so एवरी टाइम अलॉन्ग विद द पासवर्ड यूजर नेम, लाइक सी अटैकर के पास आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, तो इवन दो उसको पास ओटीपी का भी ऑप्शन, ओटीपी भी मांगेगा ही मांगेगा, इवन की फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी मांगेगा। और ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ, मेरा यूजर नेम डॉट डी में स्टोर हुआ। कंट्रोल सी से मुझे एग्जिट करना है यहाँ पे, तो कंट्रोल सी किया, एग्जिट हुआ। ओके, अभी एलएस करके मैं देखूंगा यहाँ पे कहाँ पे स्टोर हुआ पूरा डेटा, यूजर नेम डेट में स्टोर हुआ है। ओके, मान लो मैंने लिंक बना के सबको भेज दिया, जितने भी थे मेरे व्हाट्सएप पे मेल पे सबको भेज दिया, सबका डेटा जितने भी लोग ने लॉग इन ट्राई किया रहेगा ना, सबका डेटा मुझे कहाँ पे मिलेगा, इसमें मिलेगा, कार्ड यूजर नेम डेट में मिलेगा। सो यहाँ से मुझे सबका मिलेगा, जैसे प्रोटॉन मेल का यूजर नेम पासवर्ड ये है, फेसबुक का ये है, और जीमेल का यूजर नेम का ये है, इंस्टाग्राम का ये है। सो मुझे जितने भी रहेंगे सबका मुझे यहीं पे दिखेगा आएगा एक ही टाइम पे। ओके, सो मैं सब में से एक ना एक ट्राई करूंगा, तो एक ना एक तो मेरा सिस्टम अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होगा, करेक्ट होगा ना गाइज। सो वहां पे आपको एक किसी ना किसी अकाउंट का एक्सेस मिल सकता है, सो प्रोवाइडेड कि आपको अगर से कोई भी फेक मेल या फिर फिशिंग पेज आता है तो आप उसको अवॉइड करो या फिर जस्ट नंबर को ब्लॉक कर दो, सो बेस्ट होगा। ओके, और आपके स्क्रीन अगर से भर गए, जस्ट यू कैन यूज क्लियर कमांड, दिस आर द बेसिक कमांड व्हिच यू कैन यूज ओवर हियर। सो अभी तक सेशन में कुछ डाउट था, आई थिंक एवरीथिंग आई हैव डन एंड विल हैव, कल का या परसों का क्या प्रोग्राम है देखते हैं, उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल रहेगा वो परफॉर्म करेंगे। सो कीप योर सिस्टम रेडी एंड लेट्स सी क्या क्या होता है। ओके, Yes, sir. यस सर। आई थिंक वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिकल कल अक्टूबर